Hello. Good morning, sir. Good morning, students. Today and tomorrow, Arun sir is absent. He will absent tomorrow also. And Leave. given arrangement period to me. Okay. And he told me that exercise 6.4 अरुण सर नहीं आएंगे क्या? नहीं, आज और कल नहीं आएंगे. Yes. Exercise 6.4 question number 4th onwards is remaining or 5th. Good morning, sir. Good morning. From exercise 6.4, Morning, sir. from where questions was remaining? बताइए कहाँ से करना है? Arun sir told me to solve question number 6, 7, and if you want to 4, 5 or 3, tell me from where we should solve. Arshil is also present. Yes, sir. Arshil, are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Question number 6. Question number 6. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning. Six point four. Question number 6. Prove that ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of their corresponding side. Here are two similar triangles. The name ABC and DEF. Ratio of areas of two similar triangles are equal. Given ratio of areas, given area ABC, triangle ABC is similar to triangle DEF. It is given. And you can see from the board. दिख रहा है? Sir. Area, we have to prove that. Yes, sir. To prove area of triangle ABC upon area of triangle DEF. Ratio of similar two similar triangles, area of two similar triangles is equal. Both are equal given. Area DEF. And now to prove equal of the ratio equal to the square of their corresponding sides. Prove that ratio of areas of two similar triangles are equal. Then we have to prove that square of their ratio of corresponding medians. Area ABC upon area DEF is equal to median. You draw median M and N. AM square upon DN square. AM and DN are medians. AM and DN are medians of triangle. We have to prove that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to a square of medians of both triangle. So we know that
Since these are median, so we should see in triangle ABM and DEN. इन दोनों को आप पहले सिमिलर करेंगे, triangle ABM and triangle DEN. Proof. Good morning, sir. Good morning. In triangle ABM and triangle DEN, AM upon D is equal to this BM. It will be BM or not. First of all, पहले आप इसको लिख लीजिए ABC और DEN में ये होगा सिमिलर है AB upon DE is equal to BC upon EF because triangle ABC is similar, triangle DEF is given, है ना? Then corresponding side will be proportional. AB upon DE is equal to BC upon EF according to property of similar triangle. Okay. Now AB upon DE is equal to, you can write BC to 2BM. लिख सकते हैं आप? बोलिए. BC, आप BC को 2BM लिख सकते हो. Yes, sir. मीडियन मिड पॉइंट से जाता है ना, और इसको भी उसी तरह 2 Yes. 2EN. Now you cancel 2 to 2 EN. and you can write BM upon EN. EN. Okay. This one, Yes, sir. first equation. We can write here AB upon DE is equal to BM upon EN. And this is equation first. Okay. Now, we have to prove that area and AM upon DN also, na, is equal to AM upon DN. BN. Okay. Now you can write here this by this side AB upon DN is equal to BM upon EN and angle B. Angle B is equal to angle E. Is given ना? एंगल बी एंगल ई चूंकि एबीसी सिमिलर है तो बी और ई के इक्वल है और ये प्रोपोर्शनल हुआ, हेंस ट्रायंगल एबीएम सिमिलर ट्रायंगल डीईएन होगा. बोलिए. AB upon D is equal to BM upon EN, and angle B is equal to E because ABC is similar to DEF. Similar है इसलिए एंगल B और E इक्वल है. मैंने लिखा है गिवन है अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी से, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से. कोई SAS से सिमिलर हो गया ये बताइए. SAS से ये ट्रायंगल ABM एंड DEN सिमिलर हो गए. आपको एरिया प्रूव करना है. ओके. नाउ यू कैन राइट हियर AB upon सर नहीं दिख रहा है. यहाँ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा होगा. AB upon D is equal to BM upon EN. इसको एक नंबर डाल दीजिए. BM upon EM, BM upon EN.
एम अपॉन बी एम अपॉन डी एम। ठीक है, एक नंबर हो गया। अब ये साइड के प्रोपोर्शनल आ गया, सिमिलर हो गया। माइक ऑफ करो यार तुम लोग अपना। तो ए बी स्क्वायर बोलो, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? एम स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है। और ए बी बाई डी इक्वल टू एम स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर आ गया। अब क्या है? इन टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, इन टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड DEN में आपको लिख सकते हैं एरिया ABC अपॉन एरिया DEN इक्वल टू क्या होगा बताएं? AB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा, बोलो। AB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये प्रूफ किए हो थ्योरम में, जानते हो। और ये फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन यहाँ लिख दीजिए, फ्रॉम वन में आपको मिला है ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर, एम स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर। अब आप सीधा करके लिख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दें। देयरफॉर एरिया ए बी सी अपॉन एरिया DEF इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। प्रूफ बोलिए, अब कहाँ समझ नहीं आ रहा है? आप बताइए कहाँ से कहाँ तक समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट है? प्रूफ का सेकंड लिखे वहां पर, कहाँ पे? यहाँ एक बार और बताते हैं, एक बार और मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। देखिए, ये गिवन है ट्रायंगल ABC DEF सिमिलर है, इट इज गिवन। प्रूफ करना है एरिया ABC, एरिया दिया हुआ है, एरिया ABC इक्वल टू एरिया DEF, ये सिमिलर की एरिया इक्वल है ऐसा दिया है, ओके, इन क्वेश्चन। उसके बाद प्रूफ आपको करना है एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीडियंस, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन क्या होगा? एम स्क्वायर बाई DN स्क्वायर। दोनों की एरिया उनके मीडियन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, आपको प्रूफ करना है। क्यों आ रही है? हाँ, 10th में पढ़ते हो, उसके बाद भी नहीं समझ में आती, आवाज आ रही है, माइक को सही कर लो। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, DEN में देखिए DEF है ना, AB अपॉन D, AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF, क्योंकि सिमिलर है तो ये अपॉन ये BC इक्वल टू AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF, BC upon EF, you know already that corresponding sides are proportional in two similar triangle होते हैं। And you can write BC को आप क्या लिख सकते हैं? 2BM and EF को 2EN लिख सकते हैं। Now cancel 2 to 2, BM by EN, AB by D is equal to BM by EN. We have find out. Since B is equal to E, because ABC and DEF are similar, therefore ABM, triangle ABM, similar triangle DEN by SAS criterion. I have written here. Okay? अब ये सिमिलर हो गया, ये ABM और DEN में आप मैंने यहाँ लिखा है AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन ये AM अपॉन DN हो सकता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। इसके बाद आप दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर बाई DN स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं। नाउ इन टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड DE, ये सिमिलर हैं तो उनकी एरिया आप जानते हैं
इस टू सिमिलर ट्रायंगल की एरिया उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया मैंने लिखा एरिया का रेशियो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल लिखा। और ये आपने फर्स्ट में फाइंड किया है, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर। यू कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट में आपने लाया है और यही प्रूव करना था। प्रूव्ड हियर रिटन, यहां मैंने लिख दिया है। Okay, students, understood or not? Tell me. Now we should go further. आगे बढ़े। हिमांशु कुमार, चंद्र प्रकाश, ऋषभ, विशाल और लोग कहाँ हैं? Students, we should go question number 7. मैं 7 को करूं, बोलिए। Reply me. We should do question number 7. आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक म्यूट तो नहीं किया गया है। Students, your sound is not coming. Why? I have not mute. Question number 7. There is proof that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. Equilateral triangle is there. This question has been come in board exam also. ABC. It is an equilateral triangle. Given a, we have to prove that area at the any one side of the square is equal to the area, half of the area of diagonal of this square. See, ABC is a equilateral triangle, and you can write the two side A. You can write. This is also A and A. Given triangle ABC, C is an equilateral triangle. An equilateral ABC is equilateral. To prove you can give the name this one also, A, B, C, D and E and square. Shape A, B, C, D, E, F and G. To prove area of square
एरिया स्क्वायर ABCD BDEC इक्वल टू एरिया स्क्वायर BEFG। देखिए ये दिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, इसका डायगोनल B है, B पर जो स्क्वायर बन रहा है B साइड डायगोनल पे, उसका स्क्वायर ये इसके 2 टाइम्स होता है, इसके 2 टाइम्स। देखिए BDEC एक साइड BC पर स्क्वायर है, और जो स्क्वायर BDEC उसका डायगोनल B है, B पर एक स्क्वायर बनाए हैं BEFG। तो बताना है कि जो डायगोनल पर स्क्वायर है उसकी एरिया जो साइड पर स्क्वायर है उसका डबल होता है। तो आप जो डायगोनल वाला ये है, कौन है, BEFG, ये डबल एरिया होगा किसके, BDEC के। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। लेट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू, आप लिख दीजिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A आप लिख दीजिए, यहाँ लेट कर दीजिए, तीनों साइड इक्वल है तो उसको हमने A लेट कर दिया। अब डायगोनल क्या होगा, देखिए A साइड पर एक स्क्वायर बना है, तो ये सभी A ट्रायंगल का साइड BC है, और EF है, ED है और BD है। ये A साइड का स्क्वायर है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पर स्क्वायर जो बना है, इस स्क्वायर के डायगोनल पर जो स्क्वायर बनेगा उसका आधा होगा, यानी डायगोनल वाला स्क्वायर डबल होगा स्क्वायर साइड वाले स्क्वायर के। तो कैसे, आप हमने A लेट कर दिया। अब आप फाइंड करेंगे कि एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यहां दिख रहा होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। ये स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, शिवांगी तिवारी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाउ मच, किसी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, फार्मूला। ओके, साइड स्क्वायर √3/2, साइड स्क्वायर √3/4, साइड स्क्वायर ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलिए आगे लिख देते हैं, A स्क्वायर √3/4 हो गया। ओके, अब ये इसके हाइपोटेनस पे जो, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इन स्क्वायर BDEC स्क्वायर BDEC में हाइपोटेनस BE इक्वल टू अंडर रूट ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर इक्वल टू A√2, इसका डायगोनल हो गया। अब डायगोनल पर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया होगा एरिया स्क्वायर BEFG
EF G इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स a √2 का स्क्वायर इंटू √3/4 स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर √3/4 एरिया स्क्वायर BEF G इक्वल टू ये सेकंड नंबर इक्वेशन एंड हियर वाज फर्स्ट नंबर इक्वेशन area ABC स्क्वायर ABC एरिया AB एरिया BDEC है ना एरिया ये ठीक है एरिया लिखा है यहाँ पर लिखा होगा ये मैंने उस पे निकाला है डायगोनल का एरिया और इसका a²√3/4 मैंने इसको लिखा है एरिया ABC एरिया ट्रायंगल ABC साफ लिख दिया जाए यहाँ एरिया लिखा तो है लेकिन एक जगह a²√3/4 ये एक नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड से ये देखिए एरिया ABC ये ट्रायंगल की एरिया और इस पर जो स्क्वायर बना है ट्रायंगल यानी इसके साइड पर जो स्क्वायर बना है मैंने BDEC ये BDEC लिखा है एरिया a²√3/4 इस ट्रायंगल की एरिया हुआ ट्रायंगल की एरिया हो गई इस ट्रायंगल पर ये बना है ABCDEF you have to prove that to prove area of BDEC area of ABC इक्वल टू देखिए स्क्वायर में लिख दिया था स्क्वायर नहीं ट्रायंगल लिखेंगे एरिया AB एरिया BEF इक्वल टू 2 एरिया ABC ये प्रूव करना है एरिया ABC मैंने लिखा है और एरिया BEF सॉरी ये मैंने स्क्वायर का एरिया लिख दिया था BEF स्क्वायर में तो ये साइड निकाले ही है B ये ठीक है स्क्वायर में BE ये स्क्वायर में ये B इक्वल टू ये सही है BF में B अब एरिया BEF साइड √3/4 साइड यहाँ पर आया है a√2 इसका स्क्वायर √3/4 इसका स्क्वायर √3/4 इतना आया है फर्स्ट का आया है सेकंड एरिया BEF है ये a²√3/4 और 2a² √3/4 ये कैंसिल हो गया a² कैंसिल हो गया 1/2 तो एरिया BEF इक्वल टू 2 एरिया ABC सुनो
थोड़ा सा मैंने स्क्वायर के एरिया लिख दिया था, ये ट्रायंगल की एरिया कहा था कि ट्रायंगल के साइड पर जो स्क्वायर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उस साइड से जो स्क्वायर बन रहा है उसके डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है, ये प्रूव करना था। तो वो मैंने सुधार दिया इसको। ये BEF जो है ये डायगोनल पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ABC ये साइड पर बना हुआ है। तो पहले डायगोनल फाइंड किया गया है। छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया आप साइड स्क्वायर रूट 3/4 जानते हैं। इस पर इसका साइड निकालने के लिए ये निकालें पाइथागोरस से a√2, फिर इस पर स्क्वायर a² रूट 3/4 इसका भी हुआ 2 नंबर, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1:2 रेशियो आ रहा है। क्रॉस करने पर BEF की एरिया ABC के डबल हो गया। ठीक है, यही कह रहा है। हेलो, स्टूडेंट्स, हाँ सुन नहीं रहे हो क्या? सब चले गए हो? लीव द मीटिंग। You have left the meeting. No, nobody is responding. Why? Satyendra Yadav. Satyendra? Satyendra? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। मैंने म्यूट तो नहीं किया है। आई हैव नॉट म्यूट एनी ऑफ यू। आवाज नहीं आ रही है भाई, क्यों? हेलो, सत्येंद्र, हैंड्स अप। हाँ, नहीं आ रही आवाज ना? ओह, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 completed and 8 I am going to do question number 8. All of you are mute by, आपको म्यूट किया गया है, पंकज सर बता रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये समझ में आया? हैंड्स अप करो, ये समझ में आया कि नहीं? आप उंगली उठा के बताएं। अंडरस्टूड? लेट अस गो फॉरवर्ड। एक बार और बताते हैं। लिसन टू वंस अगेन। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। Area of equilateral triangle is equal to the half of the area of square formed by this equilateral
and side any one side of equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड पर जो स्क्वायर बन रहा है उसके डायगोनल पर बनने वाले स्क्वायर की इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया की डबल होती है, ये प्रूव करना था। एट नंबर क्वेश्चन, ABC and BDE are two equilateral triangle. D is the midpoint of BC. A, B, C, D, A, B, C and BDE. BDE. See, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. D is midpoint of BC. इस तरह है, ये D है और ये E है. It is midpoint. Suppose it is 2A, आप मान लीजिए इसको 2A है, ये 2A है और ये 2A है. ये 2A साइड है तो ये A हो जाएगा, ये भी A होगा और ये होगा. तो बताना है कि जो ABC की एरिया है, एरिया ABC अपॉन एरिया BDE इक्वल टू, ये ABC की एरिया होगा साइड स्क्वायर रूट 3/4, 2A का स्क्वायर रूट 3/4 और नीचे होगा ये इसकी साइड होगी A स्क्वायर रूट 3/4, रूट 3/4 कैंसिल हुआ, ये 4A स्क्वायर बाई A स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, 4/1 ये रेशियो आ गया 4:1, ये सही होगा। जो ऑप्शन दिया है 4:1 वो सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, nine. Side of two similar triangle are in the ratio 4:9. Side of two similar triangle की एरिया है 4:9, एरिया ऑफ साइड of two similar triangle 4:9 है। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो दिया है and find the triangles are in the ratio, ट्रायंगल्स की एरिया किस रेशियो में होगा, साइड स्क्वायर, रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर इक्वल टू 4/9 दिया है। साइड स्क्वायर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ये दिया है। पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया of two similar triangle is equal to under root 4/9, रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर दिया है ये, सॉरी तो साइड का स्क्वायर का साइड का दिया है, रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर, रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया है, तो रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर, ये